میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھ سے جو بات کہی اسے سنتے ہی مجھے شدید دھچکا لگا۔ میں دلہن بنے عروسی لباس میں پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہر طرف تازہ موتی کی خوشبو اور گلاب کے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ میں شرمائی سی بیڈ کے درمیان پھولوں پر بیٹھی تھی۔ بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی اور بھاری زیوروں کا وزن بھی اب تھکا رہا تھا۔ میں بیڈ پارٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور اپنے دلہے کا انتظار کرنے لگی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ اندر گلا کھنگارتے کمرے میں داخل ہوئے، میں فوراً سیدھی ہوئی اور چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا۔ میرے شوہر دروازہ بند کرتے اندر آئے اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میرا گھونگھٹ ہٹایا اور ماشاء اللہ کہتے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے میری منہ دکھائی کا تحفہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ میں نے شکریہ کہا اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بار پھر گلا صاف کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، آج ہماری زندگی کا نیا آغاز ہے اور اس میں اس کا آغاز میں بہت سچائی سے کرنا چاہتا ہوں اور ہر بات واضح طور پر کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے زندگی میں مسئلے مسائل نہ ہوں۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا، جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ میں سمجھی وہ مجھے گھر کے کاموں کو لے کر یا زبان درازی یا کھانے کے متعلق کوئی نصیحت کریں گے، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی اور شاید کسی کے بھی گمان میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھ سے بولے کہ میں جانتا ہوں ہر عورت اپنے اندر ممتا رکھتی ہے اور شادی سے پہلے ہی میاں بچے اور ایک بھرپور گھر کے خواب دیکھتی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ہمارے رشتے میں تم بچے پیدا نہیں کرو گی۔ وہ بولے تو میری سانس رک گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی یہ کیسی ظالمانہ باتیں تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر عورت کو اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد کے بغیر تو زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو مکمل اور خوبصورت بناتی ہی اولاد ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے اور کفران نعمت شرک ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے دل کی کیفیت اچانک بجھ گئی تھی۔ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب میرے شوہر دوبارہ بولے، میں کب کفران نعمت کر رہا ہوں؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم بے اولاد رہیں گے؟ ہمارے بچے ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ وہ بولے تو میرے دل کو دلاسا ہوا۔ میں نے کہا، ابھی تو آپ نے کہا کہ میں بچے پیدا نہیں کروں گی۔ میرے پوچھنے پر وہ مسکرائے اور بولے، ہاں تم بچے پیدا نہیں کرو گی لیکن پھر بھی ہماری اولاد ہوگی۔ میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے کچھ لمحے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا۔ میں سمجھی میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ تو وہ بولے، میں نے وہی کہا جو تم نے سنا۔ تم نہیں، میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات پر میں سن رہ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ مرد بچے پیدا کرتا ہے؟ بچے پیدا کرنا تو قدرت نے عورت کے جسم سے رکھا تھا۔ اگلے لمحے ہی دلہن کی شرم و حیا جھجک سب بھولے کمرے میں میرا کہکا گونجا اور میں ہنستی چلی گئی۔ میں نے کہا، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو میں سمجھی وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر ان کی بات ہوا میں اڑا دی۔ دن گزرنے لگے، ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ میرے شوہر عادتاً بہت اچھے تھے، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، جبکہ انہوں نے ابھی ازواجی زندگی شروع کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی ہم ایک دوسرے کو جان لیں، سمجھ لیں، پھر نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اور مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، سب ٹھیک چل رہا تھا۔ ہمارے درمیان کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن پھر اچانک میرے شوہر کا پیٹ بڑھنے لگا۔ ان کے کپڑے انہیں ٹائٹ ہونے لگے۔ مجھے ان کے جسم کا یوں اچانک بڑھنا بہت عجیب لگا۔ جب وہ مٹھائی لے کر آئے اور میرا منہ میٹھا کروایا، میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولے، خوشخبری ہے۔ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کس خوشخبری کی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور بولے، ہماری فیملی مکمل ہونے والی ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ان کے پیٹ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور صدمے سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے کہا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا ناممکن ہے۔ تو انہوں نے میڈیکل رپورٹ میرے سامنے رکھ دی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ میں نے یقین نہ کیا اور انہیں بھی جھوٹا کہا
और उन रिपोर्ट्स को भी, तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर गए। वहाँ उनका चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने यही कहा कि वो हामला हैं, जबकि ये सब कुछ मेरी समझ से बालातर था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं वापस घर आई। मेरे शोहर बहुत खुश थे, जबकि मैं शशोपंज में मुब्तला थी कि क्या करूं, क्योंकि ये बात ना ही काबिले यकीन थी और ना ही काबिले बर्दाश्त थी। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और बस इन सब में मेरा दिल चाह रहा था कि कहीं दूर भाग जाऊं या ये एक डरावना ख्वाब हो, मैं सुबह उठूं और सब नॉर्मल हो। पर कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। मेरे शोहर का पेट दिन ब दिन बढ़ रहा था। वो बच्चे को जन्म देने वाले थे। अगर ये बात मुआशरे से भी छुपाई जाती, मैं तभी खुद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने शोहर से खुला ले लूंगी, क्योंकि वो तो खुद औरत बनना चाहते थे और दो औरतें भला मियाँ बीवी के रिश्ते से कैसे रह सकती थी। मैं अगले दिन ही अपने शोहर को बिना बताए अपने मेके चली गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊं अपनी अम्मी को, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं रहने आई हूँ। अम्मी भी खुश हो गई। अम्मी ने मेरे शोहर का पूछा तो मैंने टाल दिया। मुझे डर था कि कहीं मेरे शोहर यहाँ फोन ना कर दें और ये ना कह दें कि मैं बिना बताए आई हूँ, क्योंकि अम्मी को एतमाद में लेने और उन्हें हकीकत बताने में मुझे थोड़ा वक्त लगता, जबकि मेरे शोहर ने एक बार भी फोन ना किया। मुझे रहते 3 दिन हुए थे कि अम्मी को शक हो गया और उन्होंने मुझसे सख्ती से पूछा कि क्या माजरा है। तो मैंने बिना कुछ छुपाए शादी की पहली रात से अब तक का सब कुछ बता दिया। मेरी अम्मी ने खुला की बात पर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि ये कोई वजह नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, और मुझे वापस घर भेज दिया। मैंने फैसला किया कि मैं सबूत लेकर अम्मी के पास जाऊंगी और उनको दिखाऊंगी कि हकीकत ये है। मैं अपने घर पहुंची। दरवाजा बजाने लगी थी कि दरवाजा पहले से खुला था। मैंने अपने मोबाइल की वीडियो ऑन की ताकि मेरे शोहर का हमल रिकॉर्ड कर सकूं, और दूसरे कमरे का हल्का सा दरवाजा खोला जहां से आवाज आ रही थी। मैं झरी में से वीडियो बनाने लगी, लेकिन उस वीडियो में जो मैंने देखा, उसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। गोया मेरे सर पर पूरा आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि मेरा शोहर, मेरा नाम मायरा है, मैं सवात की रहने वाली हूँ। मेरे अब्बा खानदानी जिम्मेदार थे और अम्मा भी जागीरदारों के खानदान से थीं। मेरे अब्बा को बेटियों से बहुत मोहब्बत थी। उन्हें शुरू से बेटियां बहुत पसंद थीं, इसलिए उन्हें एक जमींदार होने के बावजूद बेटा न होने का कोई अफसोस नहीं था। मेरे अब्बा की 3 बेटियां हैं, यानी मेरी 3 बहनें हैं। एक मुझसे बड़ी हैं जो शादीशुदा हैं और मुल्क से बाहर रहती हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थी। मुझे ग्रेजुएशन मुकम्मल किए 2 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। मेरे अब्बा को कोई परेशानी भी ना थी। वो सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ चुके थे, जबकि मेरी अम्मी आए रोज मेरे रिश्ते के लिए कोई वजीफा कर रही होती और मुझे भी कुछ न कुछ पढ़ने के लिए देती और कहती और बताती कि इसको पढ़कर अपने नसीबों के लिए दुआ करो। जबकि मुझे खुद अभी शादी की कोई टेंशन ना थी, लेकिन अम्मा की इतनी फिक्र, ऊपर से परेशानी, मुझे यूं लगता था जैसे मेरी शादी होगी ही नहीं। अब मुझे भी फिक्र होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे, बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन वो दूसरे गांव के जमींदार और जागीरदारों के होते थे, जबकि मेरे अब्बा मुझे किसी जागीरदाराना खानदान में नहीं देना चाहते थे, जहां औरतों को जाहिल रखा जाता था और मर्द पढ़ा लिखा होकर भी जाहिल ही होता था, जहां वो सीधा रस्मो रिवाज की भेंट मासूम जाने चढ़ती थी और वनी आम थी। जबकि मेरे अब्बा इल्म सिर्फ किताबों की हद तक नहीं पढ़ते थे, उस इल्म का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में भी लाते थे। इसीलिए मेरे अब्बा हम बहनों की शादी किसी अच्छे खानदान और अच्छे लड़के को देखकर करना चाहते थे, जैसे मेरी बहन का किया था। मेरी बहन के शोहर डॉक्टर थे और लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थे। मेरी बहन भी इंजीनियर थी। हमारे पड़ोसी गांव के जागीरदार के बेटे के लिए भी मेरा कई बार रिश्ता आया और मेरे अब्बा ने माजरत कर ली, क्योंकि उनका बेटा अनपढ़ था और उनका मेरे लिए रिश्ते की एक अहम वजह गांव की एक कीमती जमीन हासिल करना थी। इसलिए बाहर से आने वाले आधे रिश्तों में एक बड़ी रुकावट वही थे। मेरी खाला ने मेरी अम्मी को परेशान देखकर मेरी तस्वीर और डिटेल्स मांगी।
ताकि वो शहर में रहने वालों को दे सकें, जो बहुत बेहतरीन रिश्ते बताती थी। अम्मी ने अब्बू से पूछकर मेरी तस्वीर, बायोडेटा उन्हें दे दिया। वो आए रोज मुख्तलिफ रिश्ते भेजते, लेकिन आधे रिश्ते भेजने से पहले ही लौट जाते। वजह पड़ोसी गांव के जागीरदार थे, जो मेरा रिश्ता होने ही नहीं देते थे। अब्बू ने मेरी बड़ी बहन और बहनोई से भी बात की थी और मेरा अच्छा रिश्ता दिखाने का कहा था। अब तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। रिश्ते वाले के जरिए एक दिन एक इंजीनियर का रिश्ता आया। वो एक अच्छी फार्म में नौकरी करता था। सिर्फ माँ बाप थे, कोई दूसरे बहन भाई नहीं थे। वो लोग अपने बेटे की शादी जल्द चाहते थे। अब्बू ने छानबीन करवाई तो वो लोग अच्छे और सही लोग थे। अब्बू ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी उस लड़के से करने का फैसला किया। रिश्ते पलट जाने का डर इस बार शायद अब्बा को भी था। जब भी उन्होंने अगले हफ्ते मंगनी या रस्म की जगह सीधा मेरा निकाह कर दिया। निकाह के बाद जहां अम्मा अब्बा के दिल से बोझ उतरा, वहीं मेरा दिल भी मुतमईन हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हुई और अब्बा जो कर सकते थे उन्होंने मेरी शादी में वो किया। जहेज में छोटी से बड़ी हर चीज थी। मेरी शादी में गांव का हर शख्स इनवाइटेड था। बहुत धूमधाम से मैं रुखसत होकर अपने शोहर के संग शहर आ गई। अरमान सजाए शोहर के कमरे में बैठी थी। जब वो कमरे में आया तो जो उसने कहा, पहले तो मैं यकीन ना कर सकी, लेकिन भला ये कहाँ मुमकिन है। लेकिन फिर जब ये सब हकीकत हुआ, मेरा शोहर सचमुच में हामला हो गया। उसका पेट बढ़ने लगा और उसमें औलाद सांसें लेने लगी तो मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। ऐसा लगता जैसे बहुत जल्द खुदा का अजाब नाजिल हो जाएगा। मैंने अपने शोहर की रिपोर्ट्स पढ़ी, जिनमें उनकी प्रेगनेंसी की बाबत साफ लिखा था। मेरी सारी खुशियां पानी हो गई थी। शादी से पहले तो मैं तवक्का से हटकर बहुत खुश थी। मैं किसी अनजान से इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं साजिशों से डरती थी। लेकिन फिर जब मैंने अपने होने वाले शोहर को देखा तो मैं ठटक गई। वो हसीन था। उसकी पर्सनैलिटी में अलग ही रौब और दबदबा था। वो किसी को भी अपनी तरफ माइल करने की सलाहियत रखता था। कोई भी उसकी जानिब मुतवज्जा हो सकता था। जैसे मैं मरऊब हो गई थी। उस लम्हे मुझे बिल्कुल अंदाजा ना था कि वो एक आदमी के भेष में छुपी औरत है। मैंने जब ये बात अपनी अम्मी को बताई तो उन्होंने यकीन ना किया और खुला दिलवाने से इनकार कर दिया। मैं हैरत और सदमे में गंग रह गई कि मेरी अम्मा को क्या मुझ पर यकीन नहीं, जो वो मुझे घर बसाने की तलकीन कर रही हैं। मैं उनको सच्ची नहीं लगती थी। फिर मुझे एहसास हुआ, जिस तरह मेरी अम्मी ने यकीन ना किया, इसी तरह कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। और कोई भी भला मेरा यकीन क्यों करेगा, जबकि मैं खुद यकीन नहीं कर पाई थी। इसमें कोई दूसरे का कोई कसूर नहीं। बात ऐसी थी ही नहीं कि कोई मेरा यकीन करता। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मुझे सबूत चाहिए था। किसी और के सामने तो मुझे खुद को सच्चा साबित नहीं करना था, ना ही मुझे उससे फर्क पड़ता था कि कोई मेरे मुतल्लिक क्या सोचता है। लेकिन अपने माँ बाप को सबूत दिखाना था, ताकि उनके दिल में मेरे लिए कोई मनफी सवाल न आए और वो मेरा सहारा और ढाल बने। मैंने सोचा, मैं अपने शोहर और उसके पेट की वीडियो बनाकर वो रिपोर्ट्स चुरा कर वापस लेके आ जाऊंगी और फिर पहली फुर्सत में तलाक ले लूंगी। लेकिन मैंने जैसे ही वीडियो बनाना शुरू की और जो मोबाइल में देखा और सुना, मैं पत्थर की होते रह गई। मैं फौरन वीडियो रोक कर घर से बाहर निकल गई और सीधे रोड बगैर रास्ते का तयन किए चलती गई। मेरी आंखों से आंसुओं के रेले बह रहे थे तो मेरे गाल मुकम्मल भीग चुके थे। दिलो जान में तकलीफ की लहरें उठ रही थी। न दिल इस हकीकत पर यकीन करने पर आमादा था, ना ही दिमाग। पहली बार दोनों एक साथ एक ही बात कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जज्बात किरची किरची होकर टुकड़ों में तकसीम हो चुके थे। चलते चलते ना जाने में कहाँ निकल आई थी। सड़क सुनसान हो चुकी थी और मैं चलती जा रही थी। भला कब जिंदगी का इतना तल्ख चेहरा देखा था, जो शादी के बाद इन चंद महीनों में देख लिया था। मेरा दिल दर्द से फटने लगा। मैं वहीं जमीन पर बैठी जारों कतार रोने लगी और रोती चली गई। उस सुनसान सड़क पर मेरी आहें और सिसकियां गूंज रही थी। मुझे शिद्दत से अपने अब्बा की याद आई, जिन्होंने कभी मेरी आंख से आंसू न गिरने दिया था। लेकिन अब जैसे जिंदगी में ही रोना लिखा था। न जाने कितनी देर गुजरी थी कि मैं उठी और चारों तरफ देखा। रात के साए अपने पर फैला चुके थे।
अंधेरा फैल चुका था। मुझे अचानक डर लगने लगा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर भागने लगी। बहुत तवील मसाफत तय करने के बाद मैं घर पहुंची तो बाहर से ताला लगा था। मैंने पास रखे पौधे के गमले के नीचे से घर की चाबी निकाली और ताला खोलकर घर में दाखिल हो गई। अपने कमरे में गई। कमरा वैसा ही था जैसे मैं छोड़कर गई थी। मैंने अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने लगी। फ्रेश होने के बाद किचन में आकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते मेरा जहन सारे ताने बाने बुनने लगा। शादी के दूसरे दिन ही मैंने देखा था कि मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं थे। मैंने अपने शोहर से पूछा कि वो कहाँ हैं, तो मेरे शोहर ने कहा कि वो गांव चले गए हैं, वो वहीं रहते हैं। शहर में मैं अकेला रहता हूँ। मैं खामोश हो गई, जबकि मुझे अजीब भी लगा था कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन अजीब तो और भी बहुत कुछ हुआ था। मैंने किचन में खाना बनाया और बाहर लाउंज में आकर टीवी देखने लगी। फिर अचानक किसी ख्याल के तहत मैं मुस्कुराई और सरप्राइज देने का प्लान कैंसिल करते शोहर को फोन मिलाया, जो तीसरी बेल पर ही उठा लिया गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं घर वापस आ गई हूँ और खाने पर आपकी मुंतजिर हूँ। दूसरी तरफ बिना कुछ कहे फोन काट दिया गया। कुछ देर बाद मेरा शोहर अपना बड़ा हुआ पेट लिए कमरे में दाखिल हुआ। वो मुझे हैरत से देख रहा था। उसकी आंखों में कई सवाल थे जो मैंने बाखूबी पढ़े थे। वो हैरत छुपाए मुझसे पूछने लगा, तुम वापस आ गई? मैंने कहा हाँ, आपने मुझे फोन तक ना किया तो मैं खुद आ गई। मेरे जवाब पर वो मेरे सामने बैठा और बोला, ऐसा नहीं है। मैं समझा शायद मेरी हकीकत जानने के बाद तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। वो बोला तो मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं पहले नहीं रहना चाहती थी पर अब रहना चाहती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। जब औरत माँ बनती है तो उसका शोहर उसके दर्द का साथी बनता है। तो अगर शोहर बच्चा पैदा कर रहा है तो बीवी को भी उसका साथ देना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो औलाद आपके जिस्म से पैदा हो या मेरे जिस्म से होगी तो हमारी औलाद, और अपनी औलाद को कोई कैसे छोड़ सकता है। और ये तो ज्यादा खुशी की बात है कि मुझे बिना तकलीफ के औलाद मिलेगी। मैंने कहा तो मेरे शोहर का रंग बदल गया। वो हैरत और सदमे से हैरान मुझे देखने लगा। फिर लड़खड़ाते लहजे में पूछा, तुम वाकई सच कह रही हो? वो मुझसे घबरा रहा था। मैंने कहा 100% सच कह रही हूँ और आपका भरपूर साथ भी दूंगी। मेरी बातों और इरादों पर मेरे शोहर का रंग सफेद हो गया। वो खामोश हो गया। दिन एक बार फिर गुजरने लगे। फिर कुछ दिनों से मेरा शोहर बहुत परेशान था। वो बिल्कुल खामोश रहता। मैं उसका बहुत ख्याल रखती, उसे वक्तन फवक्तन खाने को देती, भारी चीजें उठाने से मना करती और वो चिड़चिड़ा रहने लगा और मुझे झड़क देता। मैं खामोश हो जाती। दिन गुजरने लगे। उसने मुझसे खफा होते अपना कमरा तब्दील कर लिया और मुझसे अलग रहने लगा। मैंने भी कुछ ना कहा। 2 दिन बाद मेरे नाम पर एक कोरियर आया जिसमें मेरे नाम के लंदन का टिकट था। मेरा शोहर अपने कमरे में आराम कर रहा था और मैं रात घर से निकली और एयरपोर्ट पहुंची। वहां मेरे घर वाले पहले से मौजूद थे। मेरी अम्मी अब्बा मुझसे मिले और अपनी दुआओं के साए तले मुझे लंदन भेज दिया। मैं लंदन पहुंची तो मेरी बहनोई मेरे मुंतजिर थे। मैं अपनी बहन से मिलकर बहुत रोई और मेरी बहन भी रोई। मेरे बहनोई भी हर बात से वाकिफ थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं उनके साथ उनके घर पहुंची। खाना खाकर आराम किया तो रात तक निकाह ख्वाह आ गया और मेरे बहनोई के दोस्त भी जिनसे मेरा निकाह था। एक बार फिर बहुत रोई और मेरा निकाह मेरे बहनोई के दोस्त से हो गया। रुखसती 4 महीने बाद रखी थी क्योंकि मेरे बहनोई के दोस्त कुछ अरसे के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। अब ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने बहन बहनोई से बातें करती रही। फोन पर अम्मी अब्बा से बात करके उन्हें मुतमईन किया और रात का खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर सोने लेटी तो नींद ना आई, बल्कि मैं माजी की सड़कों पर दौड़ने लगी। उस दिन वो वीडियो बनाते जो हकीकत मुझ पर आश्कार हुई थी, उसने मुझे तोड़कर रख दिया था। मेरा साबका शोहर जिसने मेरे साथ शादी का ड्रामा किया था, वो फोन पर महू गुफ्तगू था। दरअसल मेरा शोहर पड़ोसी जागीरदार का खास आदमी था जिसने नाम और पहचान बदलकर मुझसे निकाह किया था और फिर मेरे सामने ये हमला होने का नाटक इसलिए किया था ताकि मैं खुला ले लूं। और खुला या तलाक के बाद औरतों पर ऐसा धब्बा लगता था कि कोई ऊंचे या अच्छे खानदान के लोग उन्हें अपनाते नहीं थे।
ایسے وہ جاگیردار اپنے بیٹے سے میری شادی کرتا اور یہ شادی صرف اور صرف اسی قیمتی زمین کے حصول کے لیے تھی جو میرے نام تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی نکلی تھا اور اس ڈاکٹر کی بنائی رپورٹ بھی۔ میں اتنی بے وقوف تو نہ تھی۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ میں اس سڑک سنسان پر بیٹھی رو رہی تھی جب میرے پاس میرے ابا کا فون آیا۔ اماں نے انہیں سب بتا دیا تھا جس کی تصدیق کے لیے انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ مجھ پر یقین رکھتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور بہت روئی تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور اس کھیل کو جاری رکھنے کا حکم بھی۔ پھر سب کچھ میں نے ابا کے کہنے پر کیا، چونکہ وہ نکاح بھی نکلی ہی تھا، کیونکہ ہمارے پڑوسی جاگیردار حقیقت میں کسی طلاق یافتہ لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے تھے۔ ابا نے میرے لندن جانے کا انتظام کیا تاکہ مزید رکاوٹ نہ ہو اور اچانک لندن بھیج دیا جہاں میرے بہنوئی نے میرے لیے رشتہ تلاش کر کے رکھا تھا۔ وہ بھی ڈاکٹر ہی تھے۔ اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا۔ وہ جاگیردار زمین کے لیے بہت جھٹ پٹایا پر حاصل نہ کر سکا اور اب میں اور میرے گھر والے بہت مطمئن اور پرسکون ہیں۔ پیارے لوگوں، کسی پر اعتبار نہ کریں۔ اگر اپنے گرد کسی انسان جو کوئی غیر معمولی کچھ محسوس کریں تو اس کی تصدیق کریں۔ وقت پر دماغ کا استعمال کریں، نہ کہ جذبات اور غصے سے خود کو کوئی نقصان پہنچا لیں۔